We are studying the chapter poverty, and we said poverty is the inability to fulfill the minimum requirements of life. We have said that poverty can be measured in terms of absolute poverty and relative poverty. We have done the concepts of poverty line and the concept of poverty incidence ratio. Moving ahead, we are going to study the trends in poverty in India since independence. What we find is that there has been decrease in the population below the poverty line in India. Okay, this shows that there has been a decline in the poverty. There has been decline in poverty. Percentage of population below poverty line in India has decreased from 34% in 1960-61 to 21.9% in the year 2011-12, right? However, there are interstate variations. That means that poverty has not declined throughout India. In some states it has declined more, whereas in some states it has declined less, right? For example, if you look at Punjab, in Punjab only 8.3 percentage of population is living below poverty line, whereas in other states like Bihar, Orissa, the percentage of population living below poverty line is as high as 33.7%, right? So we find that there are some states which are more poor as compared to the other states, right? Moving ahead, we find that there is a decline in the rural and urban poverty, right? अब ये रूरल पॉवर्टी क्या है, जो कि रूरल एरियाज में पाई जाती है. ठीक है, रूरल एरियाज क्या है, ग्रामीण क्षेत्र, जैसे कि विलेजेस हो गई हमारे, ठीक है, ब्लॉक्स हो गए, दोज आर रूरल एरियाज एंड द पॉवर्टी हेयर इज कॉल्ड दी रूरल पॉवर्टी. ठीक है, और ये क्यों होती है रूरल पॉवर्टी, ये एग्रीकल्चर की वजह से होती है, क्योंकि वहाँ पे लोगों, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को और कोई सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं है एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चर, right? As a result, they remain poor, right? And urban poverty is the poverty which is found in the urban centers like towns and cities. ठीक है, अगर हम अपने शहर में देखें दिल्ली में, तो हम अर्बन पॉवर्टी, हमें बहुत से बेगर्स दिखते हैं. ठीक है, लैंडलेस वर्कर्स हैं, कैजुअल वेज वर्कर्स हैं, रिक्शा पुलर्स हैं, बेगर्स हैं, ऑल दीज constitute the urban poverty. So we find that there has been decrease in the rural as well as the urban poverty, but there has been an increase in the absolute number of poor in the urban areas. इसका मतलब है कि शहरों में जो गरीबी है वो क्यों है, वो क्या है, बढ़ गई है. Why has that happened? That has mainly happened because of two reasons. First is because of the increase in the urban population, right? So we find that the beggars, the rickshaw pullers, they have and casual wage workers, their population has grown tremendously in urban areas and they are constituting the urban poor. The second reason is the migration of workers from the rural to the urban areas. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रूरल एरियाज में कोई सोर्स ऑफ लिविंग, कोई सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, किसको छोड़ के, एग्रीकल्चर को छोड़ के. ठीक है, तो अब क्या है, जिन लोगों के पास बहुत कम लैंड है या बिल्कुल भी लैंड नहीं है रूरल एरियाज में, वो कहाँ आ रहे हैं, वो शहरों में जा रहे हैं. ठीक है, पर ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बिल्कुल भी स्किल्ड नहीं है. सो व्हाट डू वी फाइंड, दैट दे कम टू अर्बन एरियाज बट दे आर अनेबल टू फाइंड proper jobs in the urban areas and they constitute urban poverty, right? So two main reasons why poverty has shifted from rural to urban areas is because of increase in urban population and also because of migration of the workers from the rural to the urban areas, right? Now let's look at the causes of poverty. There are many causes of poverty. The most important one is the rapid growth of population. Now because of the rapid growth of population, the population is growing rapidly and these people are unable to find suitable jobs and this has contributed to poverty. Also, rapid population growth in the rural areas means that there has been division and subdivision of land. What does it mean? It means that भाई एक लैंड टुकड़ा है. ठीक है, अब क्या है, ये 1 एकड़ ज़मीन थी, अब इस फार्मर के 2 बेटे हुए तो ये उसने डिवाइड कर दिया. ठीक है, 2 बेटों के आगे 2 बेटे, तो ये लैंड को और डिवाइड, तो दिस इज नोन एज डिविजन एंड सब डिविजन ऑफ लैंड होल्डिंग्स और फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड. अब ये जो टुकड़ा है वो इतना छोटा रह जाएगा
कि उस पर जो अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है उस पर जो काम कर रहा है वो क्या हो जाएगा, उसकी इनकम बहुत कम होगी, एज अ रिजल्ट वो क्या हो जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन आ जाएगा. नाउ दिस इज द मेन रीजन ऑफ पॉवर्टी इन द रूरल एरियाज. ठीक है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हैज रिजल्टेड इन division and subdivision of land holdings, which has led to poverty, right? Then illiteracy and unemployment. Okay, now the workers are illiterate. Now because the workers are illiterate, what has happened is that they are unable to find proper jobs, they remain unemployed, they have no income. As a result, they are below the poverty line. इन्फ्लेशन. नाउ इन्फ्लेशन मीन्स प्राइस राइज. ठीक है, इतनी महंगाई हो गई है कि जो लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास है, वो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है. जो बेसिक मिनिमम अम्यूनिटीज़ हैं वो नहीं परचेज कर पा रहा है बिकॉज ऑफ द रैपिड प्राइस राइज. एज अ रिजल्ट दीज पीपल आर ऑल्सो बिलो द पॉवर्टी लाइन. स्लो रेट ऑफ ग्रोथ. Right, Indian economy is growing at a very very slow rate of growth, less than 2% per annum. Now at this slow rate of growth, it is unable to generate enough GDP and enough national income for people to be prosperous. So people remain poor. Right, then also we find that there is deficiency of capital. Deficiency of capital मतलब कैपिटल की कमी है, कैपिटल फॉर्मेशन की कमी है, पैसे की कमी है, जिसके कारण नए इंडस्ट्रीज़ नहीं लग पा रहे हैं. अगर नई इंडस्ट्रीज़ नहीं लग पाएंगी तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट हमारी इकोनॉमी में रहेगी, जिसके कारण क्या होगा, पीपल विल बी बिलो द पॉवर्टी लाइन. राइट, सो दीज आर सम ऑफ द कॉजेज of poverty in India, and very importantly social factors also contribute to poverty. Social factors मतलब आप जितने मर्जी गरीब हैं, you will not allow women to work. ठीक है, तो मेरी लड़की पढ़ी लिखी है और जॉब कर सकती है, पर सोशल फैक्टर्स की वजह से कि अरे लोग क्या कहेंगे कि मैं बेटी से काम करवा रही हूँ, इस वजह से लड़की को काम करने नहीं दिया जाएगा, तो जो फैमिली की इनकम क्या रहेगी, कम रहेगी. दिस इज सोशल फैक्टर. ठीक है, फिर कुछ काम है जिसके अंदर चाहे पैसा ज़्यादा हो पर आप काम नहीं करना चाहते. क्यों? क्योंकि ये सोचने में है कि आपकी सोच है कि ये काम जो है नीची जात वाले करते हैं या उनकी जात वाले नहीं करते हैं. सो दिस कास्ट सिस्टम, partiality towards female workers, all these are social factors that contribute to poverty in India. Right, now next we look at the various policies towards and programs towards poverty alleviation, towards removal of poverty. ठीक है, पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स टुवर्ड्स पॉवर्टी एलिवेशन. नाउ इंडिया में हमारी सरकार ने एक 3 डायमेंशनल अप्रोच अपनाई है टू रिमूव पॉवर्टी एलिवेशन. पॉवर्टी एलिवेशन मतलब फॉर रिमूवल ऑफ पॉवर्टी. ठीक है, सबसे पहली अप्रोच है ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच. ठीक है, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच का क्या मानना था, इसका मानना था कि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी वैसे वैसे जीडीपी बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी, एंड द बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ विल ट्रिकल डाउन. ट्रिकल डाउन मतलब नीचे तक पहुंच जाएंगे. ठीक है, लोगों के पास. ये मानना था कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन से एग्रीकल्चर में बढ़ोतरी होगी और इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो अपने आप गरीबी हट जाएगी. ठीक है, उसका बेनिफिट नीचे तक जाएगा और अपने आप गरीबी जो है वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी. लोग गरीबी रेखा से ऊपर हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन से फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी और इंडस्ट्रियलाइजेशन से वर्कर्स की इनकम बढ़ेगी. पर ऐसा नहीं हुआ. दिस डिड नॉट हैपन. Right? Why? Because the benefits of green revolution and industrialization was basically taken up by the rich people. They did not trickle down to the poor sections of the society. ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ, जो अमीर फार्मर्स थे वो और अमीर हो गए और जो गरीब थे वो वहीं पे ही रह गए. तो इससे तो इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम बढ़ी ना कि कम हुई. ठीक है, तो दिस ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच वाज नॉट अ सक्सेस. देन हमारी सरकार ने क्या किया, 1960s के अंदर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स लॉन्च किए. पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स क्या थे, ये वो प्रोग्राम्स थे जिनके तहत क्या किया गया, इनकम जनरेशन की गई. ठीक है, ये माना गया कि अगर हम लोगों की इनकम जो है उनकी जनरेट होगी, ठीक है, अगर उनकी इनकम में बढ़ोतरी होगी तो पॉवर्टी अपने आप ही कम हो जाएगी.
ठीक है, क्योंकि वो अपनी मिनिमम अम्यूनिटीज़ जो है वो फुलफ़िल कर पाएंगे। तो ये मानना था पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स अप्रोच का। दीज सॉट टू रिमूव पॉवर्टी थ्रू जनरेशन ऑफ इनकम। ठीक है, इसके अंदर 2 तरीके के प्रोग्राम्स जो है वो लॉन्च किए गए। फर्स्ट था वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम मतलब ये वो प्रोग्राम्स थे जिसके अंदर सरकार ने क्या किया, रोड्स बनाई, डैम्स बनाए और भी ऐसा काम किया, पार्क्स लगाए, जिसके कारण लोगों को क्या किया, मिला, वेतन मिला। वेतन मतलब वेजेस मिले। ठीक है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है मनरेगा है। ये आपके प्रोजेक्ट में भी काम आएगा, आपको इस पर इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। मनरेगा क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि जो भी पुअर हाउस होल्ड का बंदा है उसको 100 डेज तक मिनिमम वेज एम्प्लॉयमेंट वर्क मिलेगा। ठीक है, सो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स है क्या, जहाँ पे सरकार गवर्नमेंट क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है जिसके अंदर लेबर को क्या मिलता है, वेज एम्प्लॉयमेंट वर्क मिलता है, जिससे उनकी इनकम, उनको वेजेस और उनकी इनकम में बढ़ोतरी होती है और वो अबव पॉवर्टी लाइन आ जाएंगे। ठीक है, दूसरे तरीके के प्रोग्राम्स हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स क्या है, यहाँ पे असिस्टेंस दी जाती है, फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है उन लोगों को जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं, बोथ इन रूरल एज वेल एज इन अर्बन एरियाज़, और उनको हेल्प दी जाती है ताकि वो अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकें, जैसे पोल्ट्री फार्म हो गया, छोटी मोटी दुकान, रिपेयर की दुकान, बास्केट वीविंग का बिजनेस, ये सब शुरू, टेलरिंग शॉप, ये सब वो शुरू कर सकें। ठीक है, सो दीज वर द 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं PMRY, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, SJSRY विच इज़ स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ये जो है शहरी रोजगार योजना, एज अ नेम सजेस्ट, इट गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू पीपल इन दी शहर और दी अर्बन एरियाज। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ये भी दोनों तरीके के लोगों को, रूरल एंड अर्बन एरियाज दोनों में ही, ये जो अनएम्प्लॉयड लोगों हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको क्या मिलती है, फाइनेंशियल हेल्प इनमें मिलती है। ठीक है, ये थी हमारी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स अप्रोच। दिस इज द सेकेंड अप्रोच। द थर्ड अप्रोच इज द बेसिक मिनिमम अम्यूनिटी अप्रोच। यहाँ पे क्या माना गया कि आप गरीबी हटा सकते हैं, कैसे, बाय गिविंग, बाय सप्लीमेंटिंग द हेल्थ, न्यूट्रिशन ऑफ एंड शेल्टर ऑफ द पुअर। ठीक है, जो भी गरीबी रेखा के नीचे है उनको क्या किया जाए, उनकी सहायता की जाए, उनको बेहतर घर दिया जाए, उनको बेहतर खाना दिया जाए, न्यूट्रिशियस फूड दिया जाए, जिसके कारण वो अपनी स्थिति में क्या करें, सुधार कर सकें। बेसिक मिनिमम अम्यूनिटी अप्रोच के अंदर बहुत से प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, जैसे कि वाल्मीकि आवास योजना, जिसके अंतर्गत गरीबों को घर दिए गए। वी हैव द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS, जिसके अंदर क्या है, ये राशन की दुकानें खोली गई, जिसके अंदर जो बिलो पॉवर्टी लाइंस लोग हैं, फैमिलीज़ हैं, उनको राशन दिया गया। मिड डे मील स्कीम क्या है, जिसके अंदर जो स्कूल में बच्चे हैं उनको क्या किया गया, स्कूल में न्यूट्रिशियस फूड, दूध दिया गया, ताकि उनके हेल्थ में उनके न्यूट्रिशियस लेवल में इम्प्रूवमेंट हो सके। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, जैसे मदर्स एंड बेबीज़ के लिए, इन्फेंट्स के लिए, जहाँ पे उनको फ्री दवाइयाँ दी जाती। तो ये 3 बेसिकली हमने अप्रोचेस पढ़ी हैं। फर्स्ट इज़ द ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, जिसमें माना गया कि जब ग्रोथ होगी तो अपने आप पॉवर्टी ख़त्म हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। सेकंड थी पैप्स, जिसके अंदर क्या सरकार ने किया, सरकार ने गरीबों के लिए इनकम जनरेट की, जिसके कारण उनकी वो बिलो पॉवर्टी लाइन से अबव पॉवर्टी लाइन हो जाएंगे। 2 तरीके के प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, वेज एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे पैसा दिया गया लोगों को ताकि वो अपना बिजनेस खुद खोल सकें। वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, डैम्स एक्सेट्रा, ये क्रिएट किए सरकार ने, ताकि जो बेरोज़गार हैं उनको जॉब्स मिल सकें और वो उनकी वेतन से उनकी स्थिति में उधार हो सके। तीसरा था बेसिक मिनिमम अम्यूनिटीज़ अप्रोच। इसके अंदर कोई पैसा नहीं दिया गया, पर सिर्फ उनका हेल्थ शेल्टर जो है वो क्या किया गया, सप्लीमेंट किया गया। थैंक यू।